In this video series, we are studying about the Himalayan mountains and the Himalayan mountain ranges. So already we have studied about the three Himalayan divisions, and this is the fourth one in the series of the Himalayan mountains. So the fourth and the last Himalayan mountain range, starting from west to east. The Indian states which lies in the west of the India are the Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat. These are the states which are on the west border of the India. And if we talk about the east, then the northeastern states, just like Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, all and some other states are in the east part of the India. So here, as the name itself denotes, and as the name itself describes, that these are the Arunachal Himalayas, means the Himalayas which are in the Arunachal Pradesh, and others are the eastern hills and the mountains, means the hills and the mountains which are in the eastern part of the India. So these are the Arunachal Himalayas, means the Himalayas which covers the Arunachal Pradesh, and the eastern hills and the mountains. These are the hills and the mountains situated in the eastern part of the India, or the eastern states of India. So if we see the location of these Himalayas or these mountains, you can see that, yes, see the extension of these Himalayas are from the Bhutan Himalayas. Here we are studying first about the Arunachal Himalayas. First of all, we are studying about the Arunachal Himalayas. So if we talk about the Arunachal Himalayas, in the left side, which is the west direction of the India or the country, or on the map, and in the right side it is the east. So in the east, the extension of these Himalayas are from this direction. You can see this is the line that I made. So if we see this is the direction southwest to southeast, so northeast. So if we see the direction of these Himalayas, or the orientation of these Himalayas, it is from southwest to northeast. And if we talk about the places and the places on the earth, so these starts from the Bhutan Himalayas to the Dipsa or the Dipu Pass in the east part of the India. So it starts from the eastern Himalayas. Here you can see these are the Bhutan Himalayas, and starting from the Bhutan Himalayas, it goes up to the Dipu Pass. Here it is the Dipu Pass, and Dipu Pass is the joining point of the three countries, India, China, and Myanmar. And if we talk about the mountain peaks of this area, or these mountains, or these Himalayas, the important mountain peaks of these Himalayas are the Kangtu एंड द नामचा बैरवा. जो सबसे इम्पोर्टेंट पिक्स है, या जो माउंटेन पिक्स, जो हाईएस्ट माउंटेन पिक्स के बारे में बात करें तो कांगटू एंड नामचा बैरवा है. इनकी लोकेशन, नामचा लाइज ऑन द ईस्ट मोस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया, एंड कांगटू लाइज नियर द भूटान हिमालयाज, और इन द ईस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. एंड जो एक दूसरी एक इनकी विशेषता है फीचर है इन हिमालयाज का, वो है कि दीज हिमालयाज और दीज माउंटेन रेंजेस are dissected by the fast flowing rivers from north to south and forming deep gorges. The rivers of this area are with full of water. The specifications of the rivers of this area is with very high waterfall, or the very high amount of water, and they are fast flowing because जब हाई माउंटेन से आते हैं तो जो यहाँ की रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिवर्स है, और बिकॉज ऑफ द फास्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, दे
फॉर्म्स द डीप गोर्जेस, गहरी गहरी खाइयाँ के बीच में होकर बहती है। और जो ये गहरी खाइयाँ हैं या जो ये नदियाँ, गहरी नदियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज की जो कि को डिवाइड करती हैं, बीच बीच में डिसेक्टेड करती है, मतलब काटती है। और जो रिवर्स का अगर हम बात करें, जो इनके बहने का जो डायरेक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड सम ऑफ द रिवर्स ऑफ देम originates in Bhutan and some in the Tibet also. And Brahmaputra flows and the Brahmaputra is different from the other rivers because it originates into the Kashmir, somewhere in the Kashmir Himalayas or the Western Himalayas, and then it flows in the Tibet from west to ईस्ट। जो मतलब जो इंडिया में एंटर करने से पहले जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, हम कह सकते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स का जो दूसरी तरफ का एरिया है, जो मतलब नॉर्थ की साउथ की तरफ तो हमारा देश है और जो नॉर्थ की तरफ तिब्बत है, तो हिमालयन माउंटेन्स के दूसरी साइड पर बहती है या उनके नॉर्थ की तरफ बहती है। तो वहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है वो होता है वेस्ट से ईस्ट में। लेकिन जो नामचा बारवा माउंटेन पीक है उसके पास में इंडिया के अंदर एंटर करती है एंड इट ऑल्सो चेंजेज इट्स डायरेक्शन, और यहाँ पे आके ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। हियर इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मीन्स दिस इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट along with the Arunachal and Assam border. And if we talk about the other specifications of the rivers are with the full of water, and that's why the rivers of this area has the high potential of the hydroelectric power generation. And the some of the important rivers of this area are Kamek River. This is the Kamek River which flows here. This red line that I draw, it is the Kamek River, and it originates in the west part of the Arunachal, or there is the Kamek district in that it flows. Then there are the Subansiri River. उसके बाद में जो next river है वो है ये Subansiri River, and all these rivers are the tributaries of Brahmaputra River. And then there are the Dibang River. This is Dibang River, and there are some other rivers also which flows from east to west and joins Brahmaputra River. And Brahmaputra, that we were telling that this Brahmaputra River from it enters in India near the Namcha Berwa. This is the Namcha Berwa mountain peak, and it enters before entering here it flows in this direction from the opposite direction. Then it enters in India, then it flows this, and all these rivers are the tributaries of Brahmaputra River. So these are the some important rivers. Then we talk about the mountain peaks. There is the Namcha Berwa on the China or Tibet India border. It is which is the last point, or we can say it is on the border of the India and China. And then there was the another, that was the Kangtu Peak. This Kangtu Peak, these are the some important peaks of this area. Okay, so now and one important feature of this area mountains, or when we talk about the people of this area and the occupation of this area, मतलब जो इस एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं या उनका क्या ऑक्यूपेशन है, तो जो यहाँ के जो इन माउंटेन्स के अंदर या जो अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, दोज आर डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज। मतलब इन स्टेट्स के अंदर जो पुराने ज़माने के या जो बहुत ही पुराने अपने रीति रिवाज मानते हैं या पुराने तरीके से रहते हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और वो आज भी अपना जो पुराने ज़माने का या जो अपना मतलब वो अभी भी कम्युनिटीज़ में जनजातियों या जंगलों में रहते हैं। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स
ऑफ द अरुणाचल हिमालयज। अगर हम जो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, अरुणाचल हिमालयज के, तो अरुणाचल हिमालयज का की जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, और ये ट्राइब्स किधर से हम बात कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट, मतलब भूटान की तरफ से स्टार्ट करते हुए हम इनका एरिया डिस्कस करेंगे। जो कि सबसे पहले भूटान के पास में या जो भूटान वाले एरिया में वो है मोनपा ट्राइब, उसके बाद में आती है अबोर ट्राइब, फिर मिसमी, फिर नयेसी एंड द नागाज एंड सम अदर ट्राइब्स ऑल्सो। ये सारी ये कुछ ट्राइब्स हैं और ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। मतलब वहाँ के अगर हम अपने एरिया का या जो रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से रहते हैं वहाँ के लोग। इस तरह से मतलब उनका एक अलग ट्राइब्स होती हैं, कई तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनकी ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है, मुश्किल से हज़ारों या लाखों में है। एंड द मोस्ट ऑफ दिस ट्राइब्स फॉलो द जूमिंग, और जो इनका ऑक्यूपेशन है वो आज भी पुराने ज़माने का एक खेती करते हैं, मीन्स पशु रखते हैं और वही पुराने तरीके से ही आज भी ये रहते हैं। तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है या जो मेन फार्मिंग प्रैक्टिस है वो है झूमिंग। दे प्रैक्टिस द झूमिंग एंड झूमिंग इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और झूमिंग को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लेश या बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि एक जंगल के एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करते हैं, वहाँ पे कुछ सालों के लिए खेती करते हैं। जब उस लैंड की जहाँ पे इन्होंने खेती की है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या जो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो ये उस एरिया को छोड़ के, उन खेतों को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर जंगल के एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करते हैं और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ सालों तक वहाँ करते हैं। तो ये ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपके यहाँ पे या हमारे जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे परमानेंट फील्ड होते हैं। अगर किसी किसान का एक खेत है तो वो पीढ़ियों के लिए जनरेशन उसी खेत के अंदर खेती करेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं करते, ये चेंज होता रहता है। और जो एक दूसरा ये है कि जो इस एरिया का, बिकॉज द टोपोग्राफी इज़ वेरी रग्ड, मतलब जो माउंटेन्स है वो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, डीप गोर्जेज हैं। तो उनके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना या उनको क्रॉस करना, एक वैली से दूसरी जगह दूसरी वैली को क्रॉस करना या एक माउंटेन रेंज को क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का केवल एक ही साधन है या जो एक ही रास्ता है वह है धोर रीजन्स। जैसा कि यहाँ पे देखा, द ओनली द धोर रीजन इज़ द वन वे ऑफ इंट्रैक्शन और द ट्रांसपोर्टेशन विच लाइज ऑन द अरुणाचल आसाम बॉर्डर। जो धोर रीजन क्या है, धोर रीजन इज द कोस्टल और द बैंक एरिया जो ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर वो क्या होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और वह अरुणाचल प्रदेश और आसाम बॉर्डर पे फ्लो करती हैं। और जहाँ पे जो हिमालयन फुट हिल्स से, मतलब जब हिमालयज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं और प्लेन एरिया जा जाते हैं, तो जो मतलब हिमालयन रेंजेस के से एक दूसरे पर जाना मुश्किल होता है, तो वो वहाँ पे फुट हिल्स में आके नदी के किनारे किनारे जो नदी के द्वारा मिट्टी लाके जमाई हुई है और वहाँ पे प्लेन्स बन गए, वो है धोर एरिया। तो केवल उसी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन लोगों का होता है, या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। These are some of the communities. फर्स्ट हमने मोनपा पढ़ा था जो कि एक अरुणाचल प्रदेश के मेन कम्युनिटी है एंड द पॉपुलेशन इज अराउंड 60,000 और जो इनका रहने का जो रहते हैं वो है ये भूटान एरिया के पास में। और जो यहाँ पे टू डिस्ट्रिक्ट्स है वो है तवांग एंड कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली उनमें ये रहते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इंडिया में रहते हैं, कुछ ये तिब्बत एरिया में भी रहते हैं, तिब्बत में भी रहते हैं। नेक्स्ट वन वाज द मिसमी और द देंग। जो नेक्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो है मिसमी और देंग। एंड मिसमी एंड देंग इज मेड अप ऑफ द मेनली 3 ग्रुप्स और द 3 सब ट्राइब्स और द 3 ट्राइब्स, इदू मिसमी, देन दियाग्रा मिसमी एंड द
Mizu Mismi. These are the tribes of the Mismi community which lives in the Tibet and Arunachal Pradesh. Next one was the Nyasi community, and it is also the Arunachal Pradesh, and it lives in Nyasi. Which is combined together refers to the human being. जो Nyasi का जो मतलब है उसका ट्रेडिशनल लैंग्वेज में नी मीन्स ह्यूमन एंड द सी डिनोट्स द बीइंग, और साथ में इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। जो इनका जो मतलब है नियसी का, इनकी खुद की लैंग्वेज में वो है ह्यूमन बीइंग। अब जो हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स।